जनाब बिजली फिर बढ़ गई है, 7 रुपये 91 पैसे बिजली जनाब बढ़ा दी गई है। पहले ही कोई हाल नहीं था। अब ताजर बरादरी क्या समझती है इस चीज़ को, ये क्या कैसा इकदाम है? सर असी तो मुलाजम है, ठीक है, साडियां सैलियां तो इन्होंने खोल लितियां, ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। 25 ਯੂਨਿਟ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, 25 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਕ ਗਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈੜੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖੀਏ ਗਏ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾਲ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੂਨ ਲਿਖੀਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ, खुशहाली आएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਟਾਂ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲੈਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਸੋਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਰਸਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਜਨਾਬ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਹੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਡਾਕੂ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀਏ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 2 ਕੱਢ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝਾ ਲਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਸੱਲਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਕੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਧਰਮਪੁਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ 50,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰ ਹੋਈਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ये हालात हैं आपके सामने। जनाब एक छोटी सी दुकान है, कारोबार चल रहा है, कितना को बिल आ जाता है यहाँ मैं बिल तो हम लोग ना लेस बहुत कम कर दे इस्तेमाल करना, उसके बावजूद भी डबल में। एक लाइट है, एक पंखा है, कितना बिल? आप डू यू बिलीव कि 9 यूनिट का मुझे 3600 बिल आ गया? 9 यूनिट का? जो बेटा ये बिल दिखाओ जरा। मैं ये अभी आज मैं जमा करवा के लाया हूँ। आज मैं जमा करवा के लाया हूँ। ये एक अंदर गोदाम है और एक ये दुकान है। गोदाम में जहाँ बिजली की इस्तेमाल होती नहीं है, ये देखें अगर कैमरा दिखा सके, 9 यूनिट पे 3600 बिल, 3000 से टैक्स डाला गया। मैं फाइलर हूँ, मेरा फाइल मेरे भाई के नाम रजिस्टर्ड कारोबार है, फाइलर है, उसके बाद 3000 टैक्स है। ओवर बिलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। अब खुद देखना कि मेरा जो ओरिजिनल बिल है 200 रुपये बनता है, मुझे 3600 पे करना पड़ा है। ये मेरे दुकान का बिल है।
मैंने कभी आज तक 8,000 बिल नहीं भरा। अब मेरा रिकॉर्ड चेक कर 2,000, 3,000, 4,000 ये मेरा बिल है, और ये मुझे 8,000 टैक्स मुझे बिल भरना पड़ा कि कहाँ से निकालने अल्लाह के बंदों की महंगाई हाथ की कर दी इन्होंने। ठीक है, बंदा खुद आपके पहले प्रोग्राम में थे साकिब साहब आए थे, उन्होंने जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू किया था मैं तब जॉब ढूंढ रहा था। मैंने फूड पांडा किया, मैंने उबर चलाई, उसके बाद जब अल्लाह ने अपना कारोबार दिया, यहाँ बैठा हूँ ना तो यार मैं कहता हूँ यार कि अल्लाह ही पाल रहा है कि मैंने पिछले 6 महीने से जेब से किराया दे रहे हैं हम लोग, कारोबार की ना बहुत डाउन कर दिया उन्होंने कारोबार। 3600 बिल है ना, अब 7 रुपए 91 पैसे और बढ़ गया। तो बंदा कहाँ रोए। ठीक है, मैं बताऊँ कि इमरान खान ने फाइलर करवाया, फाइलर करवा के जो तुम्हारे पास है निकालो, उस पर टैक्स दो, ऑलरेडी जो टैक्स था उस पर टैक्स दिया, फाइलर बने। और फाइलर को ये था कि उसको सब्सिडी मिलेगी, उसको रिलीफ मिलेगा, उस सब के बावजूद भी हमें 3-3 हज़ार टैक्स पे करना पड़ा। किस खाते, किस कानून में ये समस्या आती बायनती। एक शख्स है वो 4 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, वो भी 3,000 रुपए टैक्स भर रहा है बिजली के ऊपर। एक बंदा जो 400 रुपए कमा रहा है वो भी 300 रुपए टैक्स दे रहा है, 3,000 रुपए टैक्स दे रहा है बिजली के ऊपर। तो ये कौन सा है? ये तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनती ना किसी खाते में। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुझे समझ नहीं आती किस तरह के उन्होंने मिनिस्टर रखे हैं मेरे पास, जो देख नहीं पा रहे कि देखो बिल है। हमदा शहबाज ने कहा था कि 100 यूनिट पे बिजली फ्री होगी जो कम इस्तेमाल करेगा, बाद में शायद अदालत ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपने बिल दिखा तो मैंने 95% लेस बिजली इस्तेमाल की है, जो मैंने मुल्क का एहसास कर लिया यार कि बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, अपना भी फायदा मुल्क का भी फायदा है। वो करने के बावजूद भी मैं टैक्स बढ़ना है। अगर मैं 9 की जगह 900 यूनिट इस्तेमाल करूँ तब भी मुझे 3,000 टैक्स पड़ेगा, मैं 9 इस्तेमाल तब भी 3,000 टैक्स पड़ेगा मुझे। जो आप बात कर रहे हैं ये इस हुकूमत की है या पिछली हुकूमत ये चला आ रहा था? देखो कौन मुखलिस है, कोई भी मुखलिस नहीं। इमरान खान ने सबको फाइलर किया, एमनेस्टी स्कीम निकाली, अपने बंदों को रिलीफ देके जो तुम्हारे ब्लैक मनी इसको वाइट करो, वाइट करने के बाद उन्होंने अपनी बहन को इसने दिया ना रिलीफ। ठीक है, उसकी बहन के पास कहाँ से पैसा है? अगर नवाज शरीफ का जो वालिद थे वो अगर करा दिए थे, उनके पास कुछ था नहीं, तुम्हारी बहन के पास कहाँ से आया? तुम ऑक्सफोर्ड के पढ़े होगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारी बहन के पास कहाँ से है? उसने एमनेस्टी स्कीम निकाली, अपने वज़ीरों को रिलीफ दिया, उसके बाद जाके हमने भी फायदा उठाया इसका कि जो टैक्स देने के बावजूद तो हमारे थी, हम डरते हैं लोग। भाई हमारे मुल्क में ना तालीम की कमी है, तालीम आ जाए यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे कंज्यूमर कोड नहीं है। मैं अगर मेरे माल में डिफॉल्ट नहीं कर, सब महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल का बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो मेन मुद्दा है किस चीज को ठीक करके हम कर सकते हैं, क्या समझते हैं आप आगे एक पढ़े लिखे इंसान? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर हम इमरान खान की बात करें, किसी खाते नहीं है वो, अगर वो अकेला बंदा ऑनेस्ट होगा, उसके नीचे टीम तो ऑनेस्ट नहीं होगी ना। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ की बात करें, वो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसे पता है हाउ टू वर्क एंड हाउ टू डू, वो जानता है, वो काम करना जानता है, लेकिन उसके नीचे तबका क्या कर रहा है? हमदा शहबाज शरीफ भाई मुर्गियाँ 600 रुपए किलो कर सकता है, वो अब उसके पास फॉर्म लगे, ब्लड मुर्गी फॉर्म लगे, उससे अपना फायदा देखना है। हर बंदा यहाँ पे आके फायदा देखता है। इवन मैं हूँ ना, मैं अपनी जात की बात करूँ तो मैं भी फायदा देखूंगा अपना। जिस तरफ इंसान का अक्सर कहते हैं कि लोटा लोटा लोटा, भाई वो इंसान की नेचर है, जहाँ इंसान का मुफाद है वहाँ से इंसान मूव करता है। अगर हमदा शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है तो कोई फायदा नहीं उसका हमें। इवन इमरान खान साहब कोई फायदा नहीं है। वो कह रहा है कि मैं 23 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ, ठीक है, इस मुल्क के लिए नहीं। उसको एक चीज थी, क्लिक की थी कि भाई मुझे वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठना है, उसे बस ये था, वो बैठा, उसके बाद क्या? तो आप समझते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लोग ठीक हैं, उनके नीचे जो तबका है वो करप्शन नहीं? मैं इमरान खान को ठीक हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। मैं शहबाज शरीफ का कुछ नहीं था, वो करोड़ों के मालिक हैं, कई 100 करोड़ के मालिक हैं। ठीक है, इमरान खान के पास वो कमा से था, लेकिन उसके पास नशा था ताकत का कि उसने पावर लेनी ही लेनी है। वो पावर की तरफ आया, पावर उसे कुछ नहीं था। वो कहता है कि भाई मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे, उसे मिल जाएंगे, वो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे था नशा पावर का। अगर मुझे किसी चीज़ का शौक है तो मैं उस शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने ताकत थी, ताकत ले ली, हमारी आवाम ने उसको सपोर्ट किया और ब्लाइंडली सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। इमरान खान को मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं आती। शहबाज शरीफ अगर जरदारी, वो डॉन है। तो ये जरदारी साहब के ही फैसले हैं, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ही फैसले हैं, जो बिलिंग और पेट्रोल और मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान उसे बीट नहीं कर सकते। महंगाई से मुतमिन नहीं है। नहीं महंगाई किसकी हुकूमत है ये बीज बोया गया इमरान खान की तरफ से। अच्छा, ठीक है, शहबाज शरीफ के डॉलर में जो हमारे मोस्टली पंजाबियों का एक नारा होता है, खाते तलांदे भी देने। अच्छा, ठीक है, उस मुताबिक उन्होंने डॉलर का सस्टेन रखा। ठीक है, हमारी मईशत में ऐसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं। अगर असद उमर की बात करें तो असद उमर आप कहते थे कि मैं हाईएस्ट पेड CEO था इस मुल्क का, 51 लाख रुपीस पर मंथ ये सैलरी रहते थे। तो जब आप नवाज शरीफ की हुकूमत चीखे मारते थे कि भाई ये करो डॉलर सस्टेन हो जाएगा, ये करो, जब अपनी हुकूमत है तो क्या किया आपने?
फवाद मलिक को बना दिया गया। तो फवाद मलिक क्या किया उन्होंने, बस वो फिर वज़ीर टेक्नोलॉजी बन गए हमारे, ठीक है। उनकी अजीब ही थी हिसाब किताब। तुम मुझे बता दे कि इनकी जो टीम है कोई एक वज़ीर अच्छा निकालें। वो शेख रशीद की बात करते हैं इमरान खान के, इससे तो मैं अपना कुत्ता ना रखूँ, ठीक है। उसके बाद उसका जगह झप्पियाँ डालना शुरू कर दी उन्होंने। इमरान खान को अगर अपने कामयाब होना है तो अपनी टीम चेंज करें। इमरान खान को अगर कामयाब होना है तो अपनी टीम चेंज करें। बहुत शुक्रिया।